خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو سب سے پہلے خدا نے زمین پیدا کی نہ کہ آسمان. خدا نے زمین پیدا کی اور خدا نے جب زمین پیدا کی تو پھر اس زمین کے اوپر خدا نے پھر اس کو قائم بھی کیا, خدا نے اس کو تیار بھی کیا. کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے جب زمین کو پیدا کیا تو زمین ویران اور سنسان تھی, زمین کی حالت بگڑ چکی تھی. خدا نے اس زمین پر پھر کام کیا اور زمین کے خط و خال کو پھر سے سنوارا. اور جب پھر آگے ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے کہا روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی. پھر اس کے بعد خدا نے پانیوں کو پانیوں سے جدا کیا اور زمین کو خدا نے جو ہے اس کو خشکی کو زمین کہا, پانی کو سمندر کہا. اب خشکی پر خدا نے کام کیا, زمین کو تیار کیا, زمین پر جنگلات لگائے, زمین پر ندی نالے بنائے, زمین پر پہاڑ بنائے, زمین پر پھول اگائے, زمین پر درخت اگائے اور زمین پر ہی پھولدار پھلدار سبزیاں اگائی گئی. اور زمین پر خدا نے بہت زبردست کام کر کے زمین کو سجایا, باغات لگائے اور زمین پر میوہ درخت بھی لگائے. زمین خوبصورت ہو گئی. زمین کے اوپر پھر خدا نے ایک باغ لگایا جس کو باغ عدن کہتے ہیں اور یہ خاص جگہ ہے. ساری زمین میں سے خدا نے ایک جگہ چنی اور وہ باغ عدن ہے. باغ عدن کو خدا نے سجایا درختوں سے, پھولوں سے اور پودوں سے. خدا نے اس کو حسین جمیل بنایا. خدا نے اس جگہ کو خوبصورت بنایا. کیوں خوبصورت بنایا؟ کیونکہ خدا نے یہ اس لیے بنایا کہ خدا ایک عظیم تخلیق کرنے والا تھا. بچے سے پہلے ماں باپ کتنی تیاری کرتے ہیں. ماں باپ بچے کے لیے کپڑے خریدتے ہیں اور خوبصورت کپڑے, پھر کھلونے, پھر ایسی چیزیں تاکہ بچے کے لیے یہ سب چیزیں جو وہ خرید رہے ہیں یہ سب تیاری ہے. آدم کے پیدا ہونے سے پہلے, آدم کے بنائے جانے سے پہلے خدا نے زمین کے اوپر ایک زبردست تیاری کی اور وہ باغ عدن کے اندر ہے. باغ عدن کو خوبصورت ترین سجا دیا گیا. نہریں اس کے اندر, سونا اس کے اندر اور درخت, پھول, ہر چیز اس کے اندر خدا نے بڑے کرینہ اور بڑے سلیقہ کے ساتھ ترتیب دی. اور اس کے بعد خدا نے آدم کو بنایا. لیکن آدم کو بنانے سے پہلے خدا نے زمین سے مٹی لی. اور ساری زمین میں سے خدا نے خاص مٹی کو چنا اور اس مٹی کو لیا, لے کر ڈھونڈا, سانا اور سان کر اس کا ایک پتلا بنایا اور پھر اس میں اپنی سانس کو پھونکا, اپنی روح کو پھونکا اور آدم جی کی جان ہوا اور ایک دنیا کے اوپر ایک انسان پیدا ہوا, کھڑا ہو گیا. ایک انسان جس کی 2 آنکھیں تھی, 2 کان تھے, بال تھے اور خوبصورت چہرہ تھا اور اس کے 2 بازو, 2 اس کی ٹانگیں تھی. وہ ہماری طرح کا ہی تھا اور وہ دکھنے میں ہماری طرح کا ہی تھا. اس کا سارا حلیہ, سارا اسٹیچر ہماری طرح کا ہی تھا. لیکن اگر بائبل کے اندر دیکھیں تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ خدا نے آدم کو اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر بنایا. اگر آدم ہماری طرح کا ہی تھا تو پھر ہم آدم کی طرح کے ہوئے اور آدم خدا کی طرح کا. تو جب آدم خدا کی طرح کا ہے تو ہم بھی تو خدا کی طرح کے ہوئے. آج
خدا ہم سے پیار کرتا ہے. آدم سے خدا پیار کرتا تھا, خدا سے رفاقت رکھتا تھا, خدا سے محبت کرتا. اسی لیے تو آدم سے اس باغ میں ملنے خدا آتا, اس سے باتیں کرتا, اس کے ساتھ چلتا, اس سے پیار کرتا. اور جب یہ ہر روز کا سلسلہ بن گیا تو آدم جب خدا کی حضوری میں ہے تو آدم کتنا پاک ہوگا, کتنا پاک ہوگا آدم. آج اگر کوئی انسان خدا کے ساتھ چلتا ہے, اگر آج کوئی انسان خدا سے باتیں کرتا ہے, اگر آج کوئی بھی انسان خدا سے محبت کرتا ہے, اور آج بھی کوئی بھی انسان خدا سے رفاقت رکھتا ہے, اگر وہ گھنٹوں گھنٹے رفاقت رکھتا ہے, تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ وہ جتنے گھنٹے خدا کے ساتھ رفاقت رکھے گا وہ اتنا ہی زیادہ پاک ہوتا جائے گا, کیونکہ خدا کی حضوری اسے پاک کرتی جائے گی. آدم پر خدا کی حضوری تھی اور وہ دانش مند اور عقل مند بھی ہوتا گیا. آپ پر بھی اگر خدا کی حضوری ہے, آپ کی رفاقت اگر خدا کے ساتھ ہے, تو آپ بھی پاک اور عقل مند ہوتے جائیں گے. سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب خدا نے دیکھا کہ سب کچھ اچھا ہے, زمین پر جو کچھ خدا نے بنایا سب اچھا ہے, اور چرندوں کو خدا نے دیکھا, پرندوں کو دیکھا, درندوں کو دیکھا, جنگلات کو دیکھا, سبزیوں کو دیکھا, پھولوں کو دیکھا, سب اچھا ہے. باغ عدن پر نظر دوڑائی, خدا نے کہا اچھا ہے. لیکن جب خدا نے آدم کو دیکھا تو جب آدم کو دیکھا تو خدا نے آدم کے دل کے غم کو دیکھا. آدم خوش نہ تھا, آدم کے اندر ایک غم چھپا ہوا تھا. تو خدا نے اس کو دیکھا تو خدا نے محسوس کیا کہ یہ اکیلا ہے, یہ تنہا ہے, یہ اس کی تنہائی جو ہے یہ اس کے لیے اچھی نہیں. تو اس نے کیا کیا, خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں, میں اس کی مانند اس کی ہم شکل, اس کا ایک ساتھی بناؤں گا. تو خدا نے ایک کام کیا. اب یہ دوسری پیدائش ہے. خدا نے آدم کو لیا, آدم پر گہری نیند بھیجی. اب آپ اندازہ کریں گے کہ یہ نیند جو خدا نے آدم پر بھیجی یہ کیسی نیند تھی. یہ آج کی نیند نہیں ہے جس میں ہم سوتے ہیں یا آدم سوتا تھا. یہ وہ نیند نہیں ہے, یہ خاص قسم کی نیند تھی, یعنی یہ بے ہوشی کی نیند تھی. یعنی میں دوسرے لفظوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر خدا نے, ڈاکٹر لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور عورتیں بھی, جب کسی عورت کو سیزیرین کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے ڈاکٹر اس کو ایک انجیکشن دیتے ہیں جو انتھیزیا کا ہوتا ہے, اور اس سے وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے, اور اس کو یوں کہے کہ ایک گہری نیند, ایک گہرا غلبہ اس پر آ جاتا ہے. ایسے ہی آدم پر خدا نے یہ گہری نیند بھیجی, اور آدم اس وقت گہری نیند کے غلبہ کے اندر ہے. پھر خدا نے اس کا آپریشن کیا. اب یہ دنیا میں پہلا آپریشن ہوا جو خدا نے کیا. خدا نے آدم کا آپریشن کیا. خدا نے آدم کے پہلو کو چیرا, کٹ لگایا, جس طرح ڈاکٹر اس کو کٹ لگاتے ہیں. خدا نے کٹ لگایا اور اس کے گوشت میں سے اب جب اس گوشت کو الگ کیا, پھر ان ہڈیوں کا خدا پہنچا جہاں سے اس نے اس ہڈی کو لینا تھا. خدا نے ان پسلیوں میں سے ایک پسلی لی. اب خدا نے ان پسلیوں میں سے ایک پسلی لی, اور یعنی خدا نے ان پسلیوں میں سے ایک کو چنا. خدا نے ایسے نہیں جاتی ایک پسلی کو نکال لیا, خدا نے ان پسلیوں میں سے ایک
एक पसली को चुना जिससे उसने औरत को बनाना था। एक पसली को लिया, निकाला, फिर गोश्त लिया, आदम के बदन में से गोश्त को निकाला और उसके बाद फिर आदम के जख्म को जो खोला गया था उसको फिर सी भी दिया। ये पहला ऑपरेशन है जो इस दुनिया के अंदर हुआ और खुदा ने किया। इसके बाद खुदा ने आदम की उस पसली को और उस गोश्त को लेकर हवा को बनाया और हवा को उसकी हम शक्ल बनाया। जैसे आदम के दो कान थे उसके भी दो कान, जैसे आदम की दो आंखें और एक नोज और दो बाजू, दो टांगे, और हवा की भी ऐसे ही खुदा ने तशकील की। और इस तरह खुदा ने एक औरत को पैदा किया। अब मर्द की पैदाइश मट्टी से हुई और औरत की पैदाइश मर्द से हुई। इस तरह दुनिया के अंदर पहली औरत जो है वो पैदा हो चुकी, जो मर्द से निकाली गई। अब दुनिया के अंदर 6000 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। दुनिया इंसानों से, औरतों से, मर्दों से भरी पड़ी है, लेकिन ना तो किसी मर्द को मट्टी से बनाया गया, ना किसी औरत ने मर्द में से पैदाइश पाई। ना पहला तरीका कभी इस दुनिया के अंदर दोहराया गया, ना दूसरा तरीका कभी भी इस दुनिया में दोहराया गया। अब खुदा ने इसके बाद तीसरी पैदाइश का सिलसिला जारी किया। अब खुदा ने ना मर्द को मट्टी को लिया, ना मर्द की पसली को लिया, बल्कि अब खुदा ने मर्द और औरत को तीसरी पैदाइश के लिया, ताकि दोनों के मिलाप के वसीला से इस दुनिया के अंदर पैदाइश हो, इस दुनिया के अंदर औरतें पैदा हो, इस दुनिया के अंदर मर्द पैदा हो। और आज सारी दुनिया इसी तरीका से जो कानूने फितरत है, इस तरीका को कानूने फितरत कहते हैं। खुदा ने ये तरीका, ये कानून फैला दिया। आज सारी दुनिया इसी तरीका से पैदा हो रही है। उम्मते कबीले, अब जितने भी इंसान हैं इसी तरीका से पैदा हो रहे हैं। लेकिन जब ये सिलसिला बढ़ता गया और बढ़ रहा है, तो इस पैदाइश के अंदर नबी भी पैदा हुए, रसूल भी पैदा हुए, पैगंबर पैदा हुए, नबी पारसा पैदा हुए जो खुदा की तरफ से आए, पारसा औरतें पैदा हुई, पारसा मर्द पैदा हुए जो जिन पर खुदा का रूह नाज़िल होता और वो बड़े बड़े मार के मारते। इस दुनिया के अंदर ऐसे लोग, ऐसे शख्स पैदा हुए जिन पर खुदा का रूह नाज़िल होता, खुदा का रूह इरसाल होता, वो कलाम दे लेते, वो जाकर खुदा का कलाम दुनिया तक पहुंचाते। ऐसे लोग भी पैदा हुए। और जब ये नबियों का सिलसिला आगे बढ़ता है, जब बाइबल मुकद्दस में जो खुदा का इल्हाम है, इसका सिलसिला आगे बढ़ता जाता है, पेशन गोइयां बढ़ती जाती है। मसीह के बारे में पैदाइश, मसीह की पैदाइश के बारे में कोई नबी आकर ये कहता है कि उसकी पैदाइश बैतलहम में होगी। कोई नबी आकर ये कहता है कि उसकी पैदाइश कांवारी से होगी। कोई नबी आकर ये कहता है कि उसका खानदान दाऊद का खानदान होगा। कोई नबी आकर ये कहता है कि उसकी नस्ल ये होगी। कोई नबी आकर ये कहता है कि उसके काम ये होंगे। कोई नबी आकर ये कहता है कि उसके मसाइब ये होंगे। कोई नबी आकर कहता है कि उसके दुख ये होंगे। कोई नबी आकर ये कहता है कि उसकी बादशाही ऐसी होगी। कोई नबी आकर ये कहता है कि वो कंवारी से पैदा होगा। और ये सारा सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ये 6000 साल से पेशन गोइयां होती गई। यानी पैदाइश की किताब से लेकर मिलाकी तक खुदावंद यीशु मसीह के बारे में
कुछ ना कुछ बाइबल कहती आई है, कुछ ना कुछ खुदा यीशु मसीह के बारे में नबी बयान करते आए, और बिल आकर 400 साल तक पैगाम आना बंद हुआ। यूं कहे कि आसमान बंद हो गया, ना कोई नबी आया, ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई पैगाम आया, ना बाइबल मुकद्दस आगे बढ़ी। 400 साल तक एक बड़ी खामोशी तारी हो गई दुनिया के अंदर, कोई पैगाम नहीं आ रहा। और ऐसा हुआ फिर कि फरिश्ता आया। 400 साल के बाद जब्राइल फरिश्ता आया जकरिया के पास। जब्राइल फरिश्ता आया मुकद्दसा मरियम के पास। जब्राइल फरिश्ता आया मुकद्दसा मरियम के पास। अब आकर वो ऐलानात कर रहा है, अब वो बता रहा है यूहन्ना की पैदाइश ऐसे होगी। अब वो ये बता रहा है मुकद्दसा मरियम को कि यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह होगी। अब खुदा ने जब अपने लगते जिगर यीशु को पैदा करना था तो खुदा ने तरीके तालीम को बदल दिया। जब खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु की पैदाइश करनी थी तो खुदा ने ना पहला तरीका लिया, ना दूसरा तरीका लिया, ना तीसरा तरीका लिया, ना उसने मट्टी को लिया कि मट्टी में से यीशु मसीह को पैदा किया जाए, ना उसने मर्द को लिया कि मर्द की हड्डी को लेकर, गोश्त को लेकर यीशु मसीह को पैदा किया जाए, ना उसने मर्द और औरत को लिया कि दोनों के मिलाप के वसीला से यीशु मसीह पैदा हो। लेकिन जब उसने अपने लगते जिगर, अपने प्यारे बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में लाना है तो फिर उसने तरीका तालीम को बदल दिया। उसने इस कानून फितरत के तरीका को बदल दिया। अब ना पहली पैदाइश होगी, ना दूसरे तरीका से पैदाइश होगी, अब ना कोई तीसरे तरीका से पैदाइश होगी, बल्कि अब कानून फितरत नहीं बल्कि मफाकल फितरत तरीका से यीशु की पैदाइश होगी। अब सिर्फ औरत से पैदाइश होगी, अब सिर्फ औरत को लिया गया क्या, और औरत पर रूल कुछ नाज़िल होगा। खुदा ताला की कुदरत उस औरत पर साया डालेगी और इस तरह से वो हामिला होगी, वो बेटा जनेगी, बेटी नहीं, वो बेटा जनेगी। वो औरत जिसको खुदा ने चुना वो मुकद्दसा मरियम है, वो जिसको पैगाम दिया, फरिश्ता ने आकर पैगाम दिया, वो मुकद्दसा मरियम है। और मुकद्दसा मरियम पासा है। खुदा ने जब जब भी किसी इंसान के साथ काम किया है, जब जब भी खुदा ने किसी इंसान को लिया है तो खुदा ने रास्तबाज को लिया है, पाक शख्स को लिया है, उसको लिया है जो उससे डरता है, जो खुदा ने उसको लिया है, जो उसका फरमाबरदार है। खुदा ने उस शख्स को लिया है जो खुदा का चाहने वाला है। खुदा ने उस शख्स को लिया है जो खुदा से मोहब्बत करता है, जो दुनिया से अलग रहता है, जो खुदा के लिए अपने आप को मस्व पर लाता है। मुकद्दसा मरियम को जब खुदा ने चुना है तो ऐसे नहीं चुन लिया, उसमें कुछ खूबियां थी, वो बादशाह थी, वो हलीम थी, वो खुदा से डरती थी, वो खुदा से मोहब्बत करती थी, वो पाक रहती थी और उसकी मंगनी भी हुई थी। यूसुफ नाम एक लड़के के साथ मुकद्दसा मरियम की मंगनी हो चुकी थी। अब मंगनी के बाद बड़े पैकेज चलते हैं, मुकद्दसा मरियम ने कोई पैकेज नहीं चलाया। मुकद्दसा मरियम पाक थी, उसकी गुफ्तगू पाक थी, उसकी सोच पाक थी। मुकद्दसा मरियम खुदा की बंदी थी जो अपने मुंह से इकरार करती है मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। वो खुदा की बंदी थी। आज भी खुदा की बंदियां और बंदे हैं जो मोबाइल को छोड़ते नहीं, सुबह उठते हैं
रात को सोते वक्त भी 3 बज जाए 4 बज जाए नेट को नहीं छोड़ना, पैकेज में चला है, पैकेज करना है, यूट्यूब देखना है, व्हाट्सएप की जान नहीं छोड़नी और फेसबुक से तो नजर हटानी नहीं। हर खबर पर नजर, खुदा की बंदी हर खबर पर नजर रखती है, खुदा का बंदा हर खबर पर नजर। आज खुदा के बंदे कम और हर खबर पर नजर रखने वाला शबीर ज्यादा बनकर बैठे हुए हैं। माफ करना अगर आपको गुस्सा लग रहा हो, बात हकीकत है। खुदा रास्तबाजी चाहता है, खुदा बकीज़गी चाहता है, खुदा फरमाबरदारी चाहता है, खुदा ताबेदारी चाहता है, खुदा चाहता है कि इसमें से निकलो, इस गंदगी से निकलो, इस फैशन से निकलो, इस पैशन से निकलो, इस नशे से निकलो, बुत परस्ती से निकलो, गैर अक़वाम से निकलो, अपनी सोच को बदलो। खुदा की डिमांड ये है। मुकद्दसा मरियम की सोच मसवी थी, पाक सोच थी, कलाम के मुताबिक सोच थी, वो जिंदगी गुजार रही थी तो खुदा के असूलों पर वो फरमाबरदारी से जिंदगी गुजार रही थी, वो ताबेदारी से जिंदगी गुजार रही थी, वो खुदा की बंदी थी और पाक बंदी थी। उसके लिए कोई नबी नहीं आया, उसके पास कोई पैगंबर नहीं आया, ना तो अब्राहम ईमानदारों का बाप उसके पास आया है, ना दाऊद उसके पास आया है, ना एलिया, ना मूसा, ना हारून, कोई नबी पैदाइश से लेकर मलाकी तक कोई नबी मुकद्दसा मरियम के पास नहीं आया। इस पैगाम को लेकर आया तो खुदा का फरिश्ता जो खुदा की हजूरी में ताज़ीम के साथ खड़ा रहता है, इज्जत के साथ खड़ा रहता है, जो खुदा के मुंह से निकलने वाले इरशाद का इंतजार करता रहता है कि खुदा बोले मैं उसका पैगाम लेकर उसके बंदू तक लेकर जाऊं, मैं पैगाम को पहुंचाऊं। वो अदब से खड़ा रहता है, वो ताज़ीम से खड़ा रहता है, वो खुदा के जलाल में पाक खड़ा रहता है और वो जबराइल फरिश्ता है। वो खुदा का सुखन लेकर आता है, वो खुदा का पाक तरीन पैगाम लेकर आता है। अब जैसे ही खुदा ने उसे पैगाम दिया, जा मेरी बंदी के पास, जा मेरी बंदी को जाकर ये पैगाम दे कि तेरे बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, तुझ पर रुलकुस नाज़िल होगा, तुझ पर खुदा ताला की कुदरत साया कर डालेगी, जा उसको पैगाम दे। तो फरिश्ता जब मुकद्दसा मरियम के पास आता है तो वो आकर अंदर आकर उसको सलाम करता है, सलाम है मरियम। पूरी दुनिया के अंदर देखे, बाइबल को पढ़े, सहायक को पढ़े और तारीख को भी पढ़े, दीगर मज़ाहब की कुतुब को भी पढ़ ले, आपको किसी जगह पर भी कहीं पर भी यह लिखा नजर ही नहीं आएगा कि जबराइल फरिश्ता जब भी किसी के पास आया हो तो इस कदर ऑनर के साथ, इस तरह अकीदत के साथ आया हो और आकर उसने पहले पैगाम से पहले सलाम किया हो। वो तो आता और सीधा आकर उस बंदे को पैगाम देता, ये खुदा का कलाम है, ये तेरे लिए है, ये तेरी कौम के लिए है, ये दे दे जाकर, सुना दे जाकर ये खुशखबरी का पैगाम। लेकिन यहां पर आकर तरीका बदल गया, यहां पैगाम से पहले सलाम है, पैगाम से पहले सलाम है
क्योंकि आगे हस्ती तो देखे जो बादशाह है, जो बांगरा है, जो सदीका है, जो हफीफा है, जो दामन निचोड़े, तो फरिश्ते वज़ू करे इतनी बात, जो अकीदत करती है, जो मोहब्बत के गीत गाती है, जो खुदा की हमद करती रहती है, जो खुदा की वर्शिप करती रहती है, जो खुदा के गीत गाती रहती है, खुदा की तमजीद करती रहती है, जो खुदा के लिए जिंदगी बसर कर रही है, जो ये कहती है मैं खुदा की बंदी हूं, उसके पास फरिश्ता आया है तो उसको आकर वो सलाम करता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ रही कि सीधा सीधा आकर पैगाम दे। वो किसको पैदा करने वाली है? वो कौड़ियों को पाक करने वाले को पैदा करने वाली है, वो गुनाहगारों को पाक और साफ करने वाले को पैदा करने वाली है, वो गुनाहगारों को निजात देने वाले को, मनंची को पैदा करने वाली है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाले को पैदा करने वाली है, वो तूफानों को थमा देने वाले को पैदा करने वाली है। वो कोई मामूली हस्ती को पैदा करने वाली नहीं है, वो बादशाहों के बादशाह को पैदा करने वाली है। वो किसी शहजादे को नहीं बल्कि बादशाह को पैदा करने वाली है। बादशाह बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते, लेकिन ये दुनिया का वाहिद बादशाह है जो पैदाइश से ही बादशाह है, जो पैदा होते ही बादशाह है, जो बादशाहों का बादशाह बनकर आने वाला है। ये वो है जो मुकद्दसा मरियम के बतने अतर से पैदा होने वाला है और जिसके लिए पैगाम फरिश्ता लेकर आता है और आकर फिर उसको सलाम करता है। ये मुकद्दसा मरियम का मिराज है, ये मुकद्दसा मरियम का मिजाज पाक है कि फरिश्ता सलाम करे। ये खुदा की बंदी है। हम अपना जरा मिजाज चेक करें, हम भी तो मसीही हैं, हम भी तो खुदा के बंदे और बंदियां हैं। हमें तो सच पूछे, जिसको घर में दूसरी बार रोटी नहीं मिलती, दूसरी बार सालन नहीं मिलता, जो बीवियों से डर रहा होता है, वो भी बाहर आकर सलाम नहीं करता। हकीकत है, वो भी अकड़ा फिरता है। हमारा म्यार ऐसा हो तो फिर लोग हमें प्यार भी करेंगे, लोग हमें सलाम भी करेंगे। हमारे अंदर कलमा खुदा हो, हमारे अंदर पकीज़गी हो, ताबेदारी और फरमाबरदारी हो। बात तो ये कहते हैं उस्ताद जी तो बात माननी नहीं है, कहना उस्ताद जी बात नहीं माननी, करने अपने काम, चर्च टाइम पर नहीं आना, ये ताबेदारी है। जरा ईमान से कहे ये ताबेदारी है। कहना उस्ताद जी, उस्ताद बहुत बड़ी हस्ती है, उस्ताद को जानिए, उस्ताद को समझिए, उस्ताद का रुतबा क्या है, उस्ताद का म्यार क्या है, जरा सीखिए इसके बारे में। लोग उस्ताद के बारे में जानते ही नहीं है तो उस्ताद कैसी हस्ती है। जिस्मानी बाप ने आपको बदल दिया है, रूहानी बाप ने आपको उस लेवल का नॉलेज दिया है कि आप इस दुनिया के अंदर म्यार के साथ, इज्जत के साथ जिंदगी बसर कर सके। और रूहानी बाप ने आपको वो दिया है कि आपका कनेक्शन खुदा के साथ हो सके, आप खुदा को जान सके, आप खुदा के कद के अंदाजा तक पहुंच सके, आप खुदा को समझ सके, खुदा के करीब आ सके। तो फिर भी अगर नाफरमानी ही करनी है तो क्या जरूरत है ये ढोंग रचाने की, ये ऐसी सोच रखने की। मुकद्दसा मरियम के अंदर ऐसी कोई सोचे नहीं थी, मुकद्दस यूसुफ के अंदर भी कोई ऐसी सोचे नहीं थी,
اس لیے خدا نے اپنے لگتے جگر یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے خداوند مقدسہ مریم کو اور مقدس یوسف کو لیا کہ اس زمین پر اس کے زمینی ماں باپ ٹھہرے. معیار بنائیے, خدا کی حضوری میں بڑھے پلے, خدا کی حضوری کو اپنے اندر رکھے. تابعداری بھی آئے گی, وفاداری بھی آئے گی, ریاکاری ختم ہو جائے گی, حسد ختم ہو جائے گا, لالچ ختم ہو جائے گا, جھوٹ ختم ہو جائے گا. جب تابعداری آپ کے اندر نہیں تو پھر آپ سمجھے کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بے عمل کر رہے ہیں.